कोड एंड हम लोग कंप्यूटर से वो कोड के जरिए कुछ करवा, ओके, so computer so that we can give instructions to the computer in a particular so that the computer, okay, Ma'am, your voice is सबका lagging. लैंग्वेज जैसे हमारा कॉमन में हिंदी, इंग्लिश, जर्मनी, ऐसे बहुत सारे बंगाली कॉमन लैंग्वेज। कैन एनीवन गिव सम एग्जांपल्स ऑफ Ma'am, can you please repeat? Your voice जानते was हैं कोई lagging. कंप्यूटर को किस लैंग्वेज में ऑप्शन दे सकते हैं? Sharon, you are not audible to me. I am not able to hear your voice now. Tell me this, now you are not audible. हाँ, बता। हाँ, तो है नहीं चला। Okay, Yes, now am ma'am. I audible to you? हाँ, अभी बताओ। हाँ, अभी बताओ कोई एग्जांपल दो कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज Python, लैंग्वेज का। JavaScript. JavaScript is not a programming language. JavaScript is a scripting language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम में जावास्क्रिप्ट नहीं अच्छा मैम, आएगा फिर बेटा। जावा, दूसरा सी कुछ? प्लस प्लस. यस, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन. यस। C, C++, Java, Python, C Sharp, Fortran, assembly level language, all these Pascal, all these things are examples of programming language. That means human के जैसे बहुत सारे languages होते हैं, programming लिखने का भी बहुत सारा भाषा होते हैं. And according to your need, what type of programming do you want to do? What is the purpose? What thing we need regarding our application? We choose the programming language. Now, why we are studying Python when we are studying AI? Because Python is a newly developed language through which you can do certain programs, you can communicate through the intelligent devices, smart devices that we need for program for AI. Okay, for that Python is needed. जो हम पहले का जो लैंग्वेज था C, C++, जावा से जो हम कोड लिखने जो काम करवाना चाहते हैं हम स्मार्ट डिवाइसेस से, उससे जो कोड 2 पेजेस का लिखना पड़ता था पाइथन में 3-4 लाइन पे वो काम हम करवा सकते हैं बिकॉज पाइथन इज डेवलप्ड फॉर दैट पर्पस. Very easily we can communicate with Python for that purposes. In certain purpose, Java is more helpful. Java is more advantageous than Python. In some purposes, you need to write code only in only machine level language because you will not have any translator there. So purpose to purpose differ करता है which language you will choose. Now, since we are going to program the smart devices, we are using the Python here. Okay. So that's why we need a Python. Now another thing, all of you will study that Python is an English-like language. That means whatever commands we will use, वो कमांड देख के तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड हम डालेंगे. इनपुट, कोई भी चीज इनपुट लेने के लिए इनपुट कमांड हम डालेंगे. तो ये सब देख के पता चल जाता है कि ये क्या करवाना चाहते हैं. सो इट इज एन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज. So obviously you will understand that the English like language will not be understandable by the machine because machine understand only zeros and ones. So we are writing the programming in high level language or machine like language and the computer is understanding it and it is performing according to that. How is it possible? Can anybody explain? Do anybody have any knowledge regarding this? Anybody will like to contribute anything? कैसे होता है ये Ma'am, हाई can you लेवल please लैंग्वेज में? हाँ, explain शर्णा like बताओ. translators or interpreters who just convert our English-like language to binary form? Yes, yes, a translator is needed. So for every programming language that is not machine level language, that is some other thing.
different from that, we need a translator. There are mainly two types of translator. One is called compiler and other is called interpreter. Compiler compiles, checks the whole program. If there is any error within the program anywhere from the first line to last line, it gives you a warning for that error or gives you a error that in this line there is an error and it does not allow you to execute the program. अगर सारे प्रोग्राम में एक भी लाइन पे कोई प्रॉब्लम है तो वो एग्जीक्यूट करने नहीं देगा तुम करेक्ट करोगे if the compiler finds that yes all the program is correct. Now what type of error it checks grammatical error. जैसे कोई भी लैंग्वेज में कुछ ग्रामर होते हैं, ग्रामर मतलब क्या, रूल, तो प्रोग्राम होते हैं. So it will check whether you are following all the rules or not. If some grammatical errors are there, then what it will do, rotate कर लीजिए, then what it will do, it will give you an error. Now if it finds that yes the whole program is correct, then only it will give you that it will allow you to execute the code. Now how it is different from interpreter? Interpreter also translate the code to machine level language and helps the computer to execute it. But what it does, it checks line by line. First line check कर लिया, वहां पे कोई एरर नहीं है, so it will allow you to execute it. First line execute हो गया, then it will check again next line. नेक्स्ट लाइन हो गया, एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, थर्ड लाइन चेक करेगा. ऐसे करके अगर 10th लाइन पे उसको एरर मिलता है तो वो क्या करेगा, वो 9th लाइन तक एग्जीक्यूट करने देगा, 10th लाइन पे जाके वो एरर दे देगा. मतलब जहां तक करेक्ट है वहां तक एग्जीक्यूट होगा, जहां पे एरर है वहां से एग्जीक्यूशन करना बंद. इन दिस वे इंटरप्रेटर वर्क्स. Understood the difference between compiler and interpreter? Yes, ma'am. Now the Python uses the interpreter. Okay, line by line checking करके हम लोग करते हैं Python से. Now how you will execute the Python? If you have computer system, you can install Python from the computer Google, that is open source software, and the original software download. So यहाँ पे python.org. I am telling that please follow the steps now. Python डाउनलोड में जाके python.org पे जाके यहाँ पे देखना पाइथन का लेटेस्ट ओरिजिनल वर्जन तुम लोगों को मिलेगा बाय फ्री. यहाँ से ही डाउनलोड करना है, पाइथन के ओरिजिनल साइट से दूसरे कोई भी साइट से डाउनलोड नहीं करोगे. दूसरा और एक चीज है, इफ यू हैव द इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पे एक लिंक मिलता है, पाइथन इंटरप्रेटर, हाँ programmings.com, यहाँ का इसका जो इंटरप्रेटर है ना, ये भी बहुत अच्छा है, एकदम जो ओरिजिनल पाइथन है उसी के वर्जन पे काम करता है. इस लिंक पे जाके, trying to give this in the chat box, इस लिंक पे जाके क्लिक करके तुम लोगों को जो मिल जाएगा जो पेज, वहां से भी तुम कर सकते हो. या फिर अगर मोबाइल पे कर रहे हो, मोबाइल पे पाइडॉइड 3 ऐप है, ये पाइडॉइड 3 ऐप, मोबाइल पे भी इस लिंक पे जाके तुम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट कर सकते हो इन दिस लिंक. और एक ऐप है पाइडॉइड 3. These 3 things I am telling you because these 3 things are allowed or approved by CBSE. इसके अलावा और किसी भी जगह पे बहुत सारे पाइथन के एडिटर है, बहुत न्यूमरस पाइथन के एडिटर हैं. Obviously all of them will work perfectly, but CBSE approves these 3. Okay, so according to CBSE तुम लोग कर रहे हो तो फॉर सीबीएसई पर्पस तुम लोग कर रहे हो तो इन तीनों में से कोई भी एक पे तुम लोगों को एग्जीक्यूशन करना है. अदरवाइज सीखने के लिए कोई भी एडिटर तुम लोग यूज कर सकते हो. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I will show you how will you use Python and I will show you in computer version in the IDLE that I have installed. IDLE मतलब वो जो यहाँ से जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उससे मैं करती हूँ, ठीक है.
वो इंस्टॉलेशन के बाद इस तरह से एक तुम लोगों को मिल जाएगा। आज मैं एकदम बेसिक स्टेप से दिखाऊंगी। देखो, इसका दो वर्जन होता है, पाइथन का जो कोड तुम लोग एग्जीक्यूट करते हो इसका दो वर्जन होता है। एक है इंटरेक्टिव मोड, दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। ये यहाँ पे जो मैंने खोला है इसको बोला जाता है इंटरेक्टिव मोड। से यू आर राइटिंग हियर लाइक दिस, प्रिंट देन वेलकम, कोई भी चीज तुम लिख के ऐसे करो, इसका जो आउटपुट होना चाहिए यहाँ पे दिखाई देगा, इसको बोला जाता है इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, और एक तरीके हम बाद में थोड़ी देर बाद सीखेंगे। ऐसे देखो, मैंने कैसे गया, फाइल में जाके न्यू फाइल खोला, यहाँ पे जाके अगर हम कुछ लिखते हैं तो ये फाइल फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, इसको हम सेव करके तब भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, विदाउट सेविंग हम एग्जीक्यूट इसको नहीं कर सकते। और यही मोड में तुम कोड लिख के सेव कर सकते हो। पहले जो इंटरेक्टिव मोड दिखाया उसमें तुम सेव नहीं कर सकते हो, तुमको इसी मोड में सेव करना है अगर तुम सेव करना चाहते हो तो। इसको बोला जाता है स्क्रिप्ट मोड, ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है स्क्रिप्ट मोड। और मैंने पहले जो दिखाया, ऑफ कर दिया, ये वाला जो मोड दिखाया इसको बोला जाता है इंटरेक्टिव मोड। तो कितना मोड्स में काम करता है पाइथन, कितना मोड्स में काम करता है बताओ? 2 मोड्स में। वन इज इंटरेक्टिव मोड, दिस वन, और जहां पे तुम लोग फाइल सेव करके कर रहे हो उसको बोला जाता है स्क्रिप्ट मोड, इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, अच्छा, इसमें देखो प्रिंट स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी सीख लिया। अगर कुछ प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट मतलब आउटपुट, अगर कुछ प्रिंट करना चाहते हो तो ऐसे प्रिंट करना होता है। और एक चीज देखो, से आई एम प्रिंटिंग लाइक दिस, प्रिंट स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन देन वेलकम। बताओ तो ये स्लैश एन किस चीज का काम कर रहा है यहाँ पे, क्या किया Enter. स्लैश एन ने? एंटर, राइट, वेन एवर यू नीड सम एंटर यू विल गिव स्लैश एन। अलग अनदर चीज देखो, अब स्लैश टी दिया मैंने, स्लैश टी किस चीज के लिए काम कर रहा है बताओ? Tab. स्पेस नहीं, टैब, राइट। स्पेस देते तो 3 स्पेस से इतना ज्यादा डिस्टेंस तो क्रिएट नहीं होता ना, तो स्लैश टी इज गिविंग टैब। ओके, समझ में आ गया? प्रिंट स्टेटमेंट नॉर्मल, प्रिंट स्टेटमेंट विद स्लैश एन, प्रिंट स्टेटमेंट विद स्लैश टी। अब मैं दूसरा एक चीज दिखाऊंगी। देखो, एक चीज का वैल्यू दे दिया मैंने, एक वेरिएबल का वैल्यू दे दिया 4। ओके, 4 दिया वैल्यू, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू दे दिया मैंने 9। अब मैंने लिखा प्रिंट, सॉरी, हाँ, प्रिंट ए प्लस बी। तो क्या कर रहा है ये, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या कर दिया ये? Addition. एडिशन कर दिया। अब देखो, अगर मैं प्रिंट सिर्फ ए लिखती हूँ तो ये क्या करेगा? सॉरी, अगर मैं सिर्फ प्रिंट ए लिख दिया तो क्या करेगा? ए का जो वैल्यू दिया था मैंने इसको प्रिंट कर देगा। तो ऑब्वियसली प्रिंट अगर बी करूंगी तो इसका क्या आउटपुट होगा बताओ? 9. प्रिंट अगर बी करूंगी 9 होगा। तो ये क्या कर रहा है, इस नाम का जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं इस साइड में, मतलब कोई नाम के आगे हम कोई वैल्यू जोड़ते हैं तो इस नाम को बोला जाता है वेरिएबल, क्योंकि इसका वैल्यू वेरी करता है। क्या बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है Variable. बताओ? वेरिएबल। ओके, ओके, और ये जो वैल्यू होता है इसको बोला जाता है कांस्टेंट। ये जो वैल्यू है 4 तो 4 ही रहेगा ना, 4, 9 तो 9 ही रहेगा, 9 का तो वैल्यू तुम कभी चेंज नहीं कर सकते हो ना। तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट और ये नाम को बोला जाता है वेरिएबल। अब एक चीज देखो, when I was printing welcome I was printing like this,
And when I was printing the value of A, I was printing like this. What is the difference between these two print statement? Can anybody note it? जो commas है, inverted commas. हाँ, और एक बार बताओ. हाँ, when I The am inverted printing the commas. value of a, yes, when I am printing the value of a variable, then we don't need to add the inverted commas. If we add the inverted commas, then what will happen? देखो ऐसे होगा. It is simply. क्या हुआ? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दिया तो क्या हो गया? वैल्यू नहीं प्रिंट हो गया. Total print करेंगे. वो ये ही प्रिंट हो गया. सो राइट. तो अगर वैल्यू प्रिंट करना है तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा हमें देना है. तो हमने क्या सीख गया? दो नंबर का एडिशन हम कर सकते हैं. ठीक है. तो ए का वैल्यू कुछ दे दिया, बी का वैल्यू कुछ दे दिया. अब दोनों का एडिशन करना है तो एडिशन का रिजल्ट भी हम प्रिंट करना सीख गए. अब दूसरी तरह से भी हम कर सकते हैं. देखो, हम कर दिया एस इक्वल्स टू ए प्लस बी. तो एस दूसरा एक वेरिएबल है, हमने प्रिंट नहीं किया, लेकिन दूसरा एक वेरिएबल है एस. उसके अंदर क्या किया हमने? ए प्लस बी का वेरिएबल ऐड करके एस के अंदर डाल दिया. तो हम अभी क्या कर रहे हैं? प्रिंट एस. समझ में आ गया ये वाला स्टेटमेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंडरस्टूड? ओके. अब देखो, अब हमेशा ए और बी का फिक्स वैल्यू है, 4 और 9 ही है. हमेशा हम थोड़ा 4 और 9 ही ऐड करते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऐड करेंगे ना. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इंटरैक्टिव प्रोग्राम बनाएंगे. इंटरैक्टिव प्रोग्राम मतलब यूजर से लेंगे इनपुट. हम यूजर से बोलेंगे कि तुम बताओ क्या ऐड करना है. यूजर विल टेल दैट दिस नंबर वी वांट टू ऐड, एंड देन वी विल ऐड दैट. सो फॉर दैट पर्पस we will do a script based programming. तो script based programming कैसे लिखना है पहले ही बताया था. फाइल में जाके न्यू फाइल खोलना है और यहाँ पे आके हम लोग लिखेंगे. देखो ध्यान से देखो, पहले इनपुट कैसे लेना है ये देखो. एडिशन हम बाद में करेंगे, इनपुट पहले सिखाते हैं. ओके. से आई एम राइटिंग हियर लाइक दिस, n इक्वल्स टू इनपुट एंटर. ऐसे अगर हम करें, hi, what is your name, और प्रिंट कर रहे हैं हेलो एन नाइस टू मीट यू. देखो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है. देखो देखो इसको क्लोज कर दो. देखो क्या बोल रहा है? हाय व्हाट इज योर नेम. मैंने दे दिया से अन्वेषा. ठीक है. ये क्या बोल रहा है? हेलो अन्वेषा, नाइस टू मीट यू. तो कैसा फील हो रहा है? इंटरेक्टिवनेस फील हो रहा है ना. यू हैव सीन द कोड बट सी यू हैवंट सीन द कोड. तुमको पता नहीं है कि बैकग्राउंड में क्या कोड लिखा है. अब तुम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो. तुम कोई एक एप्लीकेशन है जिसको तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो. तुमको बोला जा रहा है हाय व्हाट इज योर नेम. अब तुम अपना नाम लिख रहे हो यहाँ पे और वो बोल रहा है हेलो अन्वेषा, नाइस टू मीट यू. तो क्या फीलिंग आएगा? इंटरेक्टिवनेस फीलिंग आएगा ना इससे. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इससे हम इस तरह से हम यूजर से इनपुट लेके उसके ऊपर कुछ काम करवा सकते हैं, सो दैट इंटरेक्टिवली प्रोग्राम काम कर सके. ठीक है. तो इसके लिए देखो हमने क्या किया है. द कोड इज लाइक दिस, n इक्वल्स टू इनपुट, देन उसके आगे ये जो स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है इनपुट मांगा जाएगा तब ये स्टेटमेंट तुमको दिखेगा. जो भी तुम लिखोगे, कुछ भी तुम लिख सकते हो यहाँ. ठीक है. जो भी तुम लिखोगे इनपुट लेने के टाइम ये चीज शो होगा. ठीक है. अब यूजर कुछ वैल्यू दे रहा है. अब जो अन्वेषा यूजर दे रहा है, अब ये अन्वेषा वैल्यू कौन से वेरिएबल में जाएगा?
इसके लेफ्ट में जो वेरिएबल रहता है उसमें इसका वैल्यू जाता है, ठीक है। इसके लेफ्ट में कौन सा वेरिएबल है बताओ? N. N. एन है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो यूजर इनपुट दे रहा है। फॉर दिस प्रोग्राम आई एम गिविंग इनपुट अन्वेषा, तो एन का वैल्यू हो जाएगा अन्वेषा। अब जब नेक्स्ट प्रोग्राम आ रहा है, नेक्स्ट लाइन आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है? हेलो। डबल कोट के अंदर है हेलो, अब डबल कोट के बाहर है एन, तो एन के जगह पे क्या प्रिंट हो जाएगा बताओ? Anvesha. अन्वेषा प्रिंट हो जाएगा। तो हेलो अन्वेषा प्रिंट हो गया, देन नाइस टू मीट यू, ठीक है। ये भी फिर डबल कोट के अंदर ही रहेगा क्योंकि ये कोई वेरिएबल नहीं है। तो हमारे इस प्रिंट में तीन पार्ट आ गया, एक हो गया हेलो, दूसरा हो गया वेरिएबल, तीसरा हो गया अगेन नाइस टू मीट यू। तो ये जो तीन अलग अलग पार्ट है, ये डबल कोट के अंदर होगा, ये डबल कोट के बाहर होगा, ये फिर से डबल कोट के अंदर होगा। ये जो तीन अलग अलग पार्ट है, इन तीनों पार्ट को हम ज्वाइन करेंगे कॉमा से। तीनों पार्ट को हम ज्वाइन करेंगे कॉमा से। क्लियर? ये दो Yes, ma'am. लाइन क्लियर हो गया? किसी का कोई डाउट? No, ma'am. ओके। अब देखो, मैं जो सिखाना चाहती थी कि दो नंबर का एडिशन हम करेंगे, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, अदरवाइज आई विल गिव यू रिकॉर्ड। ये जो रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, रिकॉर्ड मैं तुम लोगों को दे दूंगी, इसको देख के भी कॉपी में लेकिन लिख के रखना है। जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है यहाँ पे, एवरीथिंग शुड बी रिटन इनसाइड द कॉपी। जब भी क्लास खोलेगा मैं कॉपी देखूंगी। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर टू ऑल? ओके। अब Yes, ma'am. देखो, अब देखो मैं दो नंबर ले रही हूँ यूजर से। देखो ये कोड समझ में आ रहा है? इन1 में एक नंबर हमने लिया, इन2 में एक नंबर हमने लिया, फिर इन1 और इन2 एस के अंदर ऐड करके रखा, फिर सम इक्वल्स टू करके एस का वैल्यू प्रिंट कर दिया। कोड समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. लेकिन एक बात ये है कि दिस कोड विल नॉट वर्क प्रॉपरली। क्यों वर्क नहीं करेगा? दैट आई विल शो यू नाउ। देखो, एक नंबर मैंने डाल दिया 5, दूसरा नंबर मैंने डाल दिया 6, तो 5 और 6 का ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए? 11. 11 आना चाहिए। देखो क्या आ रहा है? 56. एक्चुअली 56 नहीं आ रहा है, ये क्या कर रहा है? 5 और 6 को पास पास बिठा दे रहा है, ठीक है। तो क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज द कंप्यूटर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट this is a number and this is a number. It is not understanding that. It is treating it as a text value. और टेक्स्ट को तो हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या कर रहा है? पास पास बिठा दे रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर को अगर हम इंडिकेट स्पेसिफिकली नहीं बोल देंगे, वो सबको जो भी यूजर इनपुट देगा उसको एज अ टेक्स्ट वो ट्रीट करेगा। तो हम लोगों को क्या करना है? इसको स्पेसिफिकली बोलना है कि भैया जो इनपुट आ रहा है दैट इज अ न्यूमेरिकल, इसको तुम ऐड करो, ठीक है। ये जो एक्चुअली कर रहा है ना, इसको बोला जाता है कॉन्कैटिनेशन। टेक्स्ट को अगर प्लस साइन देके बिठाते हैं तो कॉन्कैटिनेशन हो जाता है। कॉन्कैटिनेशन मींस एक एक टेक्स्ट के बाद दूसरा टेक्स्ट पास पास बिठा देना, उसको कॉन्कैटिनेशन बोला जाता है। ओके, तो ये कॉन्कैटिनेशन कर रहा है बिकॉज उसको समझ में नहीं आ रहा है कि it is a numerical value. So now I will tell it that it is a numerical value. How? By writing here int. int का मतलब इंटीजर होता है। इंटीजर मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, int का मतलब इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या है? होल नंबर्स, ठीक है। तो वो होल नंबर्स अभी समझेगा। इन1 एक इंटीजर है, इन2 एक इंटीजर है, अभी इसको समझ में आएगा। पहले इसको पता नहीं था कि इंटीजर है, ठीक है। अब देखो, ये इंट देने के बाद का आउटपुट देखो क्या आ रहा है। अब मैं 5 दिया, 6 दिया, अब देखो हुआ?
Yes, ma'am. समझ में आया? Got it? Yes, ma'am. Okay. Now in this way you can do minus, you can do subtraction, multiplication, division, anything you may do like this. सोचो कि मैं यहाँ पे और सामने ही लिख रही हूँ, मैं रिजल्ट लिख रही हूँ, प्लस के जगह पे माइनस साइन दे दिया, देखो अभी दे रही हूँ 7 और 3, देखो आउटपुट आ गया 4, तो माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन साइन क्या होता है कंप्यूटर में? एस्ट्रिक, ठीक है, तो एस्ट्रिक दे दिया, एस्ट्रिक दे दूंगी तो माइनस मल्टीप्लीकेशन करेगा वो, 6 और 4 दे रही हूँ, देखो मल्टीप्लीकेशन करेगा 24। डिवीजन के लिए यूज होता है बाई, ठीक है, बाई करूंगी तो 3.5, ठीक है, डिवीजन हो गया। अब देखो डिवीजन दो तरह का हो सकता है, 3.5 देखना तुम नहीं चाहते हो, तुम अलग से देखना चाहते हो कि क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, ऐसे तो भी हम करते हैं ना, तो 7 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, इंटीग्रल क्वोशिएंट जो है वो 3 होगा, रिमाइंडर जो है वो 1 होगा, ऐसा अगर देखना चाहते हो तो स्लैश के बदले में डबल स्लैश यूज करोगे, तो इंटीग्रल क्वोशिएंट दिखाएगा, मतलब 3.5 नहीं दिखाएगा, ओनली 3 दिखाएगा, देखो ओनली 3 दिखाएगा। क्या डिफरेंस आया है? मैंने डबल स्लैश दिया है, सिंगल स्लैश दिखाएगा दोगे तो पॉइंट के बाद का आंसर दिखाएगा, डबल स्लैश दोगे तो इंटीग्रल वैल्यू दिखाएगा। तो मैंने डबल स्लैश प्रिंट करके तो क्वोशिएंट प्रिंट कर दिया, अब रिमाइंडर कैसे प्रिंट करोगे? रिमाइंडर प्रिंट करने के लिए परसेंटेज सिंबल यूज होता है, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so now here I am stopping the recording. Ma'am,